Hello, good morning everyone. Hope you people are fine. Children, today we are going to start with a new lesson of social science, that is lesson number 9, political rulers of 18th century. Now children, in this chapter we are going to study about the rulers who were ruling in 18th century. Now as you remember this ruler name is Aurangzeb, and after the death of Aurangzeb, many changes or political upheavals were found. That means the disturbing changes in India. The last rulers of the Mughal dynasty we are studying first. After the death of Aurangzeb, the last ruler of the Mughal dynasty, a sultan named Bahadur Shah, came to the Mughal throne and established peaceful relations with the Rajput and the Maratha kingdoms. However, he plotted inheritance war between the Marathas also. उन्होंने मराठास के बीच में भी इनहेरिटेंस वॉर छेड़ दिया था. इनहेरिटेंस वॉर मीन्स जो युद्ध या जो आपसी झगड़े बोल सकते हैं हम, ठीक है, जो फैमिली में होता है कि किस रानी का बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, वेदर इट इज़ द एल्डेस्ट सन और दी पावरफुल सन. जो एलिजिबल है उसको बैठना चाहिए या जो एल्डेस्ट सन जो पहला बेटा है उसको बैठना चाहिए. इस टाइप के वॉर को हम इनहेरिटेंस वॉर कहते हैं. इन हिज टाइम, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, सिख सरदार बंदा बहादुर रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर. रिवॉल्टेड मीन्स टू मेक समवन फील डिस्गस्टिंग, यानी इस तरीके से अटैक करना. And after the death of Bahadur Shah in 1712 AD, Jahandar Shah came to the throne. In 1713 AD, he was overthrown by Farrukh Shiar. That means after Jahandar Shah, Farrukh Shiar came to the throne. At this time, two brothers known as Sayyid brothers dominated the empire. That means उस टाइम पे जो दो brothers थे, सैयद brothers, उन्होंने अपना पावरफुल मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, उन्होंने अपनी पावर यूज़ करके एम्पायर पे अपना हक जमा लिया. दे रिमूव्ड फारूक शियार फ्रॉम द थ्रोन एंड मेड मोहम्मद शाह द किंग. उन्होंने फारूक शियार को हटाकर पावर के थ्रू मोहम्मद शाह को राजा बना दिया. ही रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ड्यूरिंग हिज टाइम, नादिर शाह ऑफ ईरान इन्वेडेड इंडिया इन 1739 AD, हु गेव अ हैवी ब्लो टू द मुगल एम्पायर. 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया इंडिया पे, ठीक है, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नज़र आए. शाह आलम II, who came to the throne in 1759 AD, was defeated by the Britishers in the Battle of Buxar and made a pensioner of the company. And then in 1759, when Britishers attacked in the Battle of Buxar to Shah Alam, यानी कि उन दोनों के बीच में बैटल हुआ था विच वॉज नेम्ड एज बुक्सार, उसमें शाह आलम को डिफीट कर दिया गया और उनको पेंशनर बना दिया गया. पेंशनर मीन्स पेंशन पेड पर्सन. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ बंगाल. मुर्शिद कुली खान एंड अलीवर्दी खान established an independent state in Bengal. First is Murshid Quli Khan and second is Alivardi Khan. Now Siraj ud Dowla became the Nawab of Bengal. Nawab means you can say a king, okay. The Battle of Plassey took place between Nawab of Bengal and East India Company. That means you can say Britishers का रूल अब स्टार्ट हो चुका था वहाँ पे भी. In which year? In 1757 AD. With the victory of this battle, the Britishers acquired the 24 Parganas. That means they captured, you can say 24 areas, 24 different areas at that time in Bengal. After the Battle of Plassey, Mir Zafar was dethroned and Mir Qasim was made the Nawab of Bengal. He fought the Battle of Buxar against the Britishers with the help of Nawab of Awadh and Mughal Emperor, but was defeated. उन्होंने बहुत कोशिश की ब्रिटिशर्स के साथ बैटल ऑफ बुक्सार लड़ने की. दैट मीन्स बुक्सार इज़ अ प्लेस वेयर द बैटल वॉज हेल्ड, बट उन्होंने नवाब की मदद ली जो अवध के नवाब थे और मुग़ल एम्परर थे. इतने स्ट्रॉन्ग थे वो, उनके आगे भी वो सब हार गए, ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स जीत गए. दिस ब्रॉट एन एंड to the Nawab rule in Bengal. The victory of this war established the rule of British East India Company in Bengal.
The next is Rajput states. After the fall of the Mughal Empire, Jaipur was the most powerful state in Rajasthan. जैसे ही मुग़ल एम्पायर में थोड़ा सा फॉल देखा, उसके बाद जयपुर बहुत ही पावरफुल स्टेट बन गया था राजस्थान का. राजा सवाई जय सिंह वॉज एफिशिएंट स्टेट्समैन, रिफॉर्मर, ज्यूरिस्ट एंड साइंस लवर. ही वॉज रूलिंग इन जयपुर एट दैट टाइम. ठीक है, उनके बारे में आपको क्या क्या क्वालिटीज़ बताई गई है. दैट ही वॉज एन एफिशिएंट स्टेट्समैन, जिन्हें बहुत अच्छे से रूल करना आता हो स्टेट पे. ही वॉज अ गुड चेंजर, रिफॉर्मर मीन्स. देन ज्यूरिस्ट, वो ज्यूरिस्डिक्शन में भी काफ़ी अच्छे थे. एंड लास्टली ही वॉज अ साइंस लवर. He founded the city of Jaipur and he was a great astronomer. Astronomer that means कि planets और इन सब के बारे में research करना, whether it is practical or theoretical. He set up modern observatories in Delhi, Jaipur, Ujjain and Mathura. इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या किया. Modern observatories establish की Delhi, then Jaipur, Ujjain and lastly Mathura. Other important Rajput states were Jodhpur, Bikaner, Kota, Mewar, Bundi and Sirui. As you people know, ये आज भी हमारे पास हैं ऐसे टाइप के सिटीज़ राजस्थान में, और उस टाइम पे भी थे जब राजा सवाई का रूल चल रहा था. Then next topic is the Sikh Empire. Guru Nanak founded Sikhism in 15th century. Sikhism is associated with the Guru tradition in which the 10th Gurus were born. The 10th Guru Gobind Singh united the Sikhs and established the Sikh state. उन्होंने सिख लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया था. After Guru Gobind Singh, Banda Bahadur staged a fierce revolt against the Mughal Empire. That means उन्होंने, बंदा बहादुर ने fierce revolt अटैक किया था बहुत ही बुरी तरीके से मुग़ल एम्पायर पर. And after that the Sikhs were divided into 12 groups. जितने भी सिख थे वो 12 हिस्सों में बट चुके थे. एंड देन रंजीत सिंह, अ पावरफुल लीडर ऑफ सुकार चाकिया क्लैन, डेवलप्ड द सिख एम्पायर. ही कॉन्क्वर्ड मीन्स हासिल कर लेना, लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान, एंड established a vast territory of the Sikh Empire. His army consisted of European generals and soldiers. He made his army as modern as the armies of Europe. In Lahore, he set up a cannon factory. Cannon factory, you know, जहाँ बारूद वगैरह, गन्स वगैरह बनती हैं, उसे हम कैनन फैक्ट्री बोलते हैं, जो उन्होंने सेटअप किया था लाहौर में. उनकी आर्मीज़ यूरोप जैसी मॉडर्न थी एंड उनके सोल्जर्स यूरोपियन जनरल्स होते थे. ओके, ही वॉज रिलीजियसली लिबरल. रिलीजियस में भी वो लिबरल थे, टॉलरेटेबल थे, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि वो टॉलरेट कर सकते थे सबको. हाउएवर, आफ्टर हिज डेथ द ब्रिटिशर्स एनेक्स द सिख एम्पायर इन 1849 AD. जैसे ही डेथ हो गई रंजीत सिंह की, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अटैक किया एंड कैप्चर कर लिया सिख एम्पायर 1849 AD में. देन नेक्स्ट इज द मराठा एम्पायर. Chhatrapati Shivaji is at the forefront of the great rulers of the 17th century. You have already studied about him. Shivaji created an independent state by troubling the Sultan of Bijapur, the Mughal Emperor Aurangzeb, and lastly the Portuguese. Portuguese, आपको पता हो तो पोर्चुगल एक कंट्री का नाम है. ओके, इनको बीजापुर के सुल्तान को और लास्टली मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के साथ इन्होंने लड़कर जीत हासिल की थी एंड उन्होंने मराठा एम्पायर स्टैब्लिश किया था. अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी, मराठास एडॉप्टेड guerrilla warfare in the साउथ. छत्रपति शिवाजी ने लीडरशिप रखी थी मराठास के साथ. ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी, मराठास एडॉप्टेड guerrilla warfare. छत्रपति शिवाजी की हेल्प से, या बोल सकते हो आप, मराठा ने भी उनका साथ दिया जिससे guerrilla warfare हो सका साउथ में. And then he established an efficient, systematic and democratic regime for an independent state. उसके बाद मराठास ने क्या किया, एक ही बहुत ही अच्छा एफिशिएंट, सिस्टमैटिक एंड लास्टली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया.
Along with these achievements, Shivaji's noble character and generous policies were also included. यानी उनका क्या कैरेक्टर था, कैसे वो हम्बल कैरेक्टर के थे और उनकी क्या पॉलिसीज़ थी, क्या राजनीतियाँ थी, वो भी सब इंक्लूड की गई हैं उनके अचीवमेंट्स में. After Chhatrapati Shivaji, Shivaji's grandson Shahuji was imprisoned by Aurangzeb. शिवाजी के जो पोते थे ग्रैंडसन शाहूजी, उनको बंदी बना लिया गया था. किसने बनाया था? औरंगज़ेब ने. After 1707 AD, when Shahuji was released, an inheritance conflict broke out between him and his aunt ताराबाई. जैसे ही शाहूजी रिलीज़ हुए, कैद से बाहर आए औरंगज़ेब की, तो उनके घर में भी इनहेरिटेंस वॉर कॉन्फ्लिक्ट देखा गया. ओके, जिसमें उनका वॉर किसके साथ था? उनकी आंट ताराबाई. पेशवा बालाजी विश्वनाथ एसोसिएटेड विद शाहूजी हेल्प्ड हिम इन द कॉन्क्वेस्ट. पेशवा प्रैक्टिस बिगेन इन द मराठा किंगडम फ्रॉम हिज टाइम. द फर्स्ट पेशवा is Balaji Vishwanath. He developed Maratha kingdom and took all the powers in his hands. सबसे पहले राजा पेशवा के बालाजी विश्वनाथ थे. ओके, एंड ही took all the powers in his hands. In 1720 AD, when he died, his son Baji Rao first became the पेशवा. विश्वनाथ की डेथ के बाद बाजी राव आए थे जो राजा बने पेशवा के. नाउ बाजी राव was a skilled warrior and a shrewd politician. skilled warrior यानी कि बहुत ही अच्छे वॉरियर थे वो, एंड इवन अ shrewd politician, that means a good decision maker थे वो. He merged many Mughal territories into the Maratha Empire and expanded Maratha state. He conquered, यानी कि उन्होंने अब क्या क्या हासिल किया? मालवा, गुजरात एंड बुंदेलखंड. Not only this, he defeated the Nizam of Hyderabad also. हैदराबाद के राजा को भी उन्होंने हरा दिया था. ही ट्रांसफॉर्म्ड महाराष्ट्र इनटू अ ग्रेट मराठा एम्पायर. पूरे महाराष्ट्र को उन्होंने ग्रेट मराठा एम्पायर में तब्दील कर दिया था. आफ्टर हिज डेथ इन 1740 AD, हिज सन बालाजी बाजीराव बिकेम द पेशवा. ही अचीव्ड विक्ट्रीज फ्रॉम बंगाल टू मैसूर. और जैसे बाजीराव एफिशिएंट थे, वैसे ही उनके जो सन थे बालाजी बाजीराव, वो भी इतने ही एफिशिएंट एंड अच्छे राजा थे और उन्होंने विक्ट्रीज भी अचीव कर ली थी बंगाल टू मैसूर. Then there was a third battle of Panipat which took place between the Marathas and the Ahmad Shah Abdali, in which Marathas were defeated. Okay, Marathas और अहमद शाह अब्दली के बीच में बैटल हुआ था पानीपत में. ठीक है, इट वॉज द थर्ड बैटल. उसमें अहमद शाह ने हरा दिया था मराठास को. एंड देन बालाजी बाजीराव डाइड बाय हियरिंग द ट्रॉमेटिक न्यूज़. ये न्यूज़ सुनते ही कि मराठास हार गए हैं, बालाजी बाजीराव की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. वो ट्रॉमेटिक, दैट मीन्स वो इतनी उनके लिए शॉकिंग थी कि वो कंप्लीट कोमा में चले गए थे एंड उससे उनकी डेथ हो गई थी. एंड एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश पावर रोज इन इंडिया. इस तरीके से पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था. So children, this chapter is completed over here. Hope you people have understood. Thank you.